Assalamualaikum. I see Paramez there as well. Can you hear me? अच्छा ठीक. अच्छा जी, very quickly two things. वो कह रहे थे कि जी economist, उसकी मैं definition मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है. An economist is someone who knows 100 different ways of pleasing a woman. His only problem is he doesn't know any women. ठीक है? So it's that kind of definition of economist who doesn't know any economy, but उसको सारा पता है कि क्या करना है. ठीक? So to start with, वो जो मेरे skeletons in my cupboard पे वो जिक्र कर रहे थे उसको भूल जाए. Let us really try and understand what the issues are, and then, because I'm a great believer, I don't like generalities. कि जी export बढ़ा दें, जी flank कर दें. So let's be much more specific, because that's the only way that we will move forward. ठीक है जी? So very quickly, अगर आप पहले पे आ जाएं, very grateful. हाँ जी. Huh? Oh, it was behind. Okay. अच्छा जी, to begin with, I'll be very, quick through my slides. There are only nine of them. I'm a great believer. If you can't say 9 slides, you really don't know what you want to say. अच्छा, the present mess we find ourselves is self-inflicted. और उसका सबसे simple example मैं आपको सिर्फ इस पर दे रहा हूँ. Is really ये जो energy sector पे हम रोते हैं, इसकी policy किसने बनाई थी? हमने बनाई थी, कोई बाहर से तो नहीं आए थे. जो आज हमारा रोना है, it was one template that was prepared in Islamabad, और हमने सबको दे दी. So in a sense, it's these kinds of issues that are self-inflicted. ये IMF और बाकियों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना कि हमारे मसाइल का हल निकालें. Very quickly, economic style of management hasn't changed in the last 40 years. Don't let anyone tell you कि नहीं जी, we were doing it differently. It's been the same. हम भागे जाते हैं, फिर IMF के पास चले जाते हैं. पहले दिहाड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, बाहर से पैसे आ जाते थे. अब क्योंकि आ नहीं रहे तो हमारा एक ही स्टाइल, एक ही काम रह गया, जिसको हम क्या कहते हैं, लोगों को खत लिखते हैं कि सर जी रोल ओवर कर दो या पैसे भेजकर खैरियत से मुतला फरमाएं. ठीक है, तो हमारा अब स्टाइल ये है. ठीक. And the fundamental weaknesses which I want to come to very quickly, we now are going to be around, so the equilibrium rate of growth, really, frankly, is going to be between 2.5 to 3% of GDP. ये आप गलतफहमी से दूर कर लें कि it will be something even better. ठीक है जी? Full-blown crisis आज तक नहीं हुआ, and no sovereign default yet, but it will be worth your while listening to just a 2-minute clip of Kenneth Rogoff, who was a former chief economist at the IMF. He is now a professor at Harvard. उसने बुनियादी बात ही खत्म कर दी. उसको पूछा गया कि पाकिस्तान के 24 प्रोग्राम हो गया. By the way, I agree with him, but I'll just use him as a 24 प्रोग्राम में वो क्या होगा? और which I believe very strongly, उसने कहा जी 25वां तो चाहिए, which is a fact of life. Not just 25, you probably need more. But more importantly, he said, अगर 25वां नहीं होगा तो ये 24वें पे डिफॉल्ट करेंगे. That's him saying, not me. ठीक है? Let me move on to the next one. यार नहीं, sorry, ये पीछे जाइएगा एक सेकंड. Oh, यार ये sorry, I think you got it wrong. अच्छा, IMF, sorry, that's my next slide. Okay, sorry. Next slide is really about IMF and donor programs. देखिए, IMF, let us be very clear. IMF क्या करता रहा है? उन लोगों ने भी पिछले 12 प्रोग्राम किए हैं in the last 2 decades, and they've learned nothing. They've really cluttered up their programs, and what they have is आज 50 conditionalities हैं. And you look at the capacity of ourselves to be able to do this, there is only a very lip service to reform, which I'll come to in a moment. वो करते क्या हैं? Let us be very clear.
यहाँ अकाउंटेंट बैठे हैं ना तो आपको समझाना बड़ा आसान है. They do an arithmetic exercise. ये रेवेन्यू और ये खर्चा है. But us as accountants understand that this is a cash-based system. We all know in a cash-based system, the real issue is the liabilities which are building up. And there are huge liabilities which have been building up as we speak. And I'm not talking of the liabilities, particularly of circular debt वगैरह को. मैं कह रहा हूँ no ministry, no department can tell you today कि उनकी liabilities क्या है. It's my open challenge to all of them, without exception. कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी liabilities क्या हैं आज. Because really, because we don't have a double entry system, no one knows what the liabilities are and what the assets are. और सबको suit करता है assets in particular. ना पता होगा कि ये asset है, ये किसके लिए इस्तेमाल होना है, इसकी patronage में किसको plot देने हैं, किसको गाड़ी देनी है, so it suits everyone. So this whole question is that we now have an overwhelming emphasis on revenues, and I will move on very quickly to the next one. और वो जो instruments आपको भी पता है, आप accountants हैं, जो tax से deal करते हैं, how complicated the tax structure is. तो मुझे याद है मैं fund वालों को हमेशा ये कहता हूँ कि यार तुम्हारी core competence is the fiscal side. जो हम जैसे को मिलते रहते हैं, your core competence is the fiscal side, and this is the tax structure that you have created. मुझे आप बताएं, आपने दुनिया में और कहीं ऐसा tax structure आपने बनाया है? आपकी core competence तो ये, अब आप कहते हैं हमने governance भी करनी है, आप कहते हैं हमने climate change भी करनी है, आपकी क्या है? आपने जो extended your mandate, आपकी core competence ये नहीं थी. वो कैसे मैं बता तो रहा था future. उनसे बात भी नहीं आप कर सकते क्योंकि वो सुनते भी नहीं हैं. So उनका role is essentially to bail themselves out. So let's be very clear. To bail themselves out and all the commercial bankers. और वो इस वक्त 9 बिलियन देने हैं, 1 बिलियन आया, 1 बिलियन का हमने चेक लिख दिया, so now 8 billion is due. Or all kinds of distortions, I won't go into more details. Austerity, वो यही है ना कि जी austerity क्या है हमारे यहाँ austerity ये है कि आपकी और मेरी belt tighten कर दें ताकि इस्लामाबाद वाले की belt थोड़ी सी loosen और हो जाए. That's our style of government. Nothing has changed. And frankly, the political economy, if you look at it, is not going to change drastically. डोनर होते रहते हैं, हम जैसों को मिलते हैं कि जी वो देखे हैं बात क्या है, क्या वादे करते हैं पूरे नहीं करते. मैंने कि जी बिगड़ा हुआ, मैं कि यार ये बिगड़ा हुए बच्चे को देख रहे थे ना, उसकी आदतें तब्दील नहीं हो रही थी ना, पर पैसे क्यों दे रहे थे? पैसे कंटिन्यूसली देते रहे हो ना, क्यों दे रहे थे? So why shouldn't you now take a hit? Why shouldn't you take a hit? I mean, if you are as a banker, continue to bail out a company which is not a going concern, who should take the hit? The banks. Moving on to the next one. ये आपके सामने है. I'm not going to say a great deal. Focus has been कि जी tax to GDP ratio कर लो. और भाई मेरे, the real issue is on the expenditure side of the fiscal equation. आपके सामने है फेडरल गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद भी देखें, it still has 43 divisions. There are 1.2 million employees, civilian employees of the federal government. Or today, 1.2 trillion is being spent on subjects which really have been transferred to the provinces. और वजह बड़ी वाज़ेह है. ब्यूरोक्रेसी खिलाफ है. ब्यूरोक्रेट कहता है कि अगर ये डिविजनें कम हो गई तो मैं, इसका मतलब है 15 डिविजनें, हम जैसे कहते हैं 15 डिविजन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर हो जाऊंगा.
MNA कह रहा है जनाब मैं इलेक्शन जीत के आया तो मैनू फिर तुसी मिनिस्टर नहीं बनाओगे। To give you an idea कि अब क्या हो रहा है कि just this year, apart from the fact कि जी divisions उतनी है, 65 new agencies have been created just this year. और हम सबको पता है as accountants we understand it is not a 1 year. So if I were to look at the future obligations and you add on things like pensions, तो अब pensions 32 ट्रिलियन से ज्यादा की हो चुकी हुई है। और आप सबको पता है कि फंडेड स्कीम्स तो है नहीं ना, ये कोई प्रोविडेंट फंड तो नहीं है जिसकी एक फंडेड स्कीम है। पंजाब प्रोविंस व्हेन आई वाज हियर एट 22 डिपार्टमेंट्स और आई एम ऑन रिकॉर्ड, मेरे को भी पढ़ा होगा नोट वहां कि यार देयर आर 7 टू मैनी उस जमाने में, अब 48 है। तो ऑल वी आर डूइंग इज कि हमने लोगों को नौकरियां देनी है। And that's our entire, the exercise of both the federal and the provincial governments. सियासतदानों के लिए तो यही एक तरीका है। Then the footprint of the government was regulatory framework. 122 regulatory agencies हैं at the federal level. हमारे यार दोस्त कहते रहते हैं कि जनाब बात यह है कि ease of doing business होनी चाहिए, फलां शिक चेंज कर दो। नहीं, ये शिकों की कहानी नहीं है। जितनी देर तक ये इदारे होंगे यू कैनॉट हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इनको बंद करोगे तो फिर गाड़ी आगे चलेगी। डोंट किड योरसेल्फ कि इसका हल है कि जी कानून की फलां शिक तब्दील कर दो। यू नीड टू क्लोज देम डाउन। गाड़ी आगे जाना था। आगे क्यों नहीं जा रहे? Then you obviously हम सबको पता है, just to remind ourselves, the accumulated losses of SOEs is now 6 trillion. अच्छा मैं सुनता रहता हूँ कि जी गुजारिश ये है कि इसका हल यही है कि जी प्राइवेटाइज कर दो। और भाई मेरे most of them have to be closed down. I'll give you examples very quickly. मैं अभी आते वक्त रास्ते में लिख रहा था, you have the telephone industry, the State Engineering Corporation, NFML, Cotton Trading Corporation, there are 5 in FATA, PPAC, PACO, PNSC, which is just a monopoly, करती तो कुछ भी नहीं है, National Construction Company, I can go on. Don't kid yourself, they can't be privatized, you have to close them down. ये हम कहानियां सुनते रहते हैं कि जी हल ये है कि यार नहीं है, you have to close them down. ठीक है जी। You have a PSDP portfolio. It has more than 1,200 projects. It will take 14 years to complete them आज के हिसाब से। And मैंने जैसे आपको पहले कहा कि no one knows the liability, so as we speak, आपने ठेकेदार को काम दे दिया, उसका मीटर तो चल रहा है ना। आपने कहा जी हम इस साल खर्चा नहीं करेंगे, पर उसका तो मीटर चल रहा है ना भाई। So the liabilities are building up and no one really knows that ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, this is not revised costs. These are all old historical costs. To give you an example, इस्लामाबाद एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 150 बिलियन में, completed for 1 trillion. Another example, वो नीलम झेलम जो आज बंद पड़ा है, 85 बिलियन का ठेका था, completed. By the way, I've corrected myself, ये 514 is 800 billion now. और वो बंद पड़ा। So this project जो इस वक्त जिसको हम थ्रो फॉरवर्ड कहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट्स इतने हैं, उनकी कॉस्ट क्या थी? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 10 ट्रिलियन। दैट्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट। लैक ऑफ सैंक्टिटी ऑफ बजट, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, फैसला करता है कि जी मैंने अब इसको इतने पैसे दे देने हैं, फलां को इतने दे देने हैं, एक और इदारा खोल देना। सो देयर इज नो सैंक्टिटी ऑफ द बजट।
When I was at the State Bank, आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे ईसीसी की मीटिंग हुई, तो मेरा एक स्टैंडर्ड जोक था जो मैं हफीज शेख साहब को करता था कि जिस दिन ईसीसी होती थी उसमें 25 बिलियन का सप्लीमेंट्री आ जाता था। भैया बजट की हैसियत कोई नहीं है। इट्स जस्ट अ नंबर विच इज मीनिंगलेस कि जी इतनी एलोकेशन हो गई तो 25 बिलियन। तो मैं उनको ये कहा करता था कि जी आज बड़ा अच्छा हो गया, आज सिर्फ 20 हुए हैं। और जिस दिन ईसीसी कैंसिल हो जाती थी मैं तालियों का ये इमोजी भेजता था। That is our style of management. And I'm not making any of this up. That's the way we function. That's the way we operate. I'll move on very quickly now. More importantly, ऐसे जी करना क्या चाहिए? You obviously need to start shrinking the federal government. 2/3. देखिए हम सबको पता है कि रातों रात इदारे बंद नहीं हो सकते, लोगों को निकाला नहीं जा सकता। मैं कहता हूं भाई मेरे इदारे बंद कर दो, इनको सरप्लस पूल में डाल दो, इनकी तनख्वाहें दे दो। इदारा बंद होगा उसका एडवांटेज ये है कि खुर्रम जिस दिन रिटायर होगा उसके बदले नया बंदा नहीं भर्ती हो सकेगा। इदारा बंद होगा तो पोजीशन नहीं होगी। इदारे बंद कर दो, उनको सरप्लस पूल में डाल दो। यू विल सेव ऑन रेंट, यू विल सेव ऑन यूटिलिटीज, यू विल सेव ऑन गाड़ियां। दैट्स द ओनली। हम समझते हैं यार, प्रैक्टिकल बात यही है। आप इदारा बंद कर दे, नहीं निकाल सकते। जब रिटायर होते जाएंगे, जो रिटायर होने जाता है 30 साल की सर्विस को, यार अल्लाह पैसे, जिंदगी रहे तो मुलाकात होगी। IMF को तो हम यही कहते हैं, तुसी भी होते हो असी भी होते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पैसे दे देंगे। ये अब हुकूमत कर रही है कि सरेंडरिंग ऑल वेकेंट पोस्ट। मैं कह रहा हूं इदारे बंद कर दो, ठीक है। A lot of these positions, frankly, in this day and age of technology and so on, are no longer required. In-depth review, फेडरल PSTP खुदा का वास्ता है 3 साल के लिए बंद कर दो। सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोई नहीं होंगे, पुरानों को कंप्लीट करो। 75% अगर रिवाइज कॉस्ट की बेसिस पर कंप्लीट हो गए हैं तो बाकी कंप्लीशन की करो। जिन पर खर्चा अभी तक से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 15% हुआ है, आई वुड से, एंड ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस, ट्रीट दैट एज सunk कॉस्ट एंड राइट इट ऑफ। क्योंकि वहां पे कुछ नहीं हो रहा सिवाय लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, आपने गाड़ियां दी हुई हैं, किराए पे दफ्तर लिए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं होना है। ये the only way is close down these projects. There is no other way of doing it. और प्रोजेक्ट आप बंद कर दें, राइट इट ऑफ एज sunk cost। हम सबको ये बात समझ आती है। यार ये टैक्स रिजीम का तो खुदा के वास्ते मुझे नहीं समझ आ रही क्या करना। मुझे ऐसी आती है फ्रैंकली कि अब वो कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर को, तो वो आई वांट टू गो इनटू डिटेल्स, पर मुझे ऐसी ये आ रही है जैसे मुझे एक एक्सपोर्टर ने बड़ी अच्छी बात बताई। छोटा एक्सपोर्टर है, उसने कहा कि जी उसके पास आए, वही जो स्टैंडर्ड होता है कि 2% देना है, 29। ज़ाहिर है आप सबको मुझसे बेहतर पता है सौदा होना है, बट मोर इम्पोर्टेंट वाज इंटरेस्टिंग। उसने कहा जी मेरे तो सब ठीक है, आप कर ले हिसाब, मुझे कोई इतराज नहीं, आप देखते हैं। मैंने आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एंड कॉम्पनसेट यू इन एनी वे। उन्हें बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा बात है पिछले 5 साल के अकाउंट दिखा दो। उसने कहा जी पिछले 5 साल 35 साल से तो 1% पे हो रहा था, तो मैंने तो उस तरह बुक्स नहीं बनाई हुई थी। उन्होंने कहा पर ये तो पर आपका मसला है। So this reality of having a structure that the fund is never understood. आप मुझे बताएं एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अकाउंटिंग होती है? छोटा कोई भी फार्मर, वहां पे तो कैश बेस्ड सिस्टम है। Now you want an accounting records like those that the FPR will accept. So ये to have a tax regime along these lines, frankly, will not
work. So there is an element of transition जिसको हमने करना चाहिए था कि इसको किस तरह आगे लेके चला. आप कहते हैं रातों रात ये करना, रातों रात 40 साल तो आपने किया कुछ नहीं, अब रातों रात कर रहे. वो देखिए tariffs, let's be clear, there is something which needs to be done in tariffs because we want to be part of a value chain. दुनिया में दो ही value chains हैं. एक ये कि मैं और आप टेलीविजन नहीं बना सकते. You have to be part of the value chain. टेलीविजन सैमसंग बनाता है. So you can be a supplier to a supplier driven chain. और दूसरी chain is really the buyer driven chain. बेच वॉलमार्ट ही बेचता है, Amazon है, आप नहीं बेच सकते. So let us be clear that we have to be part of that, and that really requires. इस पे मैं फिलहाल नहीं जा रहा. इस पे थोड़ा सा काम तो शुरू किया फेडरल गवर्नमेंट ने. I think it will be a political challenge, we all know. But anyway, ये जो ताजर स्कीम थी, I think we went about it the wrong way. To me, it should have been wholesalers and large scale commercial entities first. पहले phase में ये कर लेते, and then over the next year or so. Contributory pension scheme पर चले जाएं. लेकिन वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि प्राइवेट सेक्टर में तो पेंशन स्कीम उस तरह की नहीं होती जिस तरह गवर्नमेंट में है. तो यू कैन हैव अ कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम. जो नए आ रहे हैं उन सबको आप इस स्कीम पे लगा दें, बट यू नीड टू हैव इट फुली फंडेड. जो हमारा स्टाइल है वो नहीं है ना. वी डोंट हैव अ फुली फंडेड स्कीम. हम तो ये कहते हैं कि तनख्वाह से काट दो और बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर बाकी पैसे दे दें. So we need to have a full. ठीक है. दूसरा, you will have to raise the salaries of the bureaucrats. और उसके लिए एक ही हल है, monetize their salaries. ये गाड़ियां, ये घर उनसे ले लो. Because then when you monetize the salaries with the contribution for the contributory pension scheme will become much more meaningful. इनको आप दे दें, ये इदारे बंद करें, उससे पैसे रिलीज होंगे. You actually sell a lot of government, ये जो GR की कोठियां अल्फला वो, and you actually गाड़ियां वगैरह ये सब चीजें आप उनसे ले लेंगे. You will have the cash to be able to pay them a better salary. Predictable policies, अभी मैं वैसे बात कर रहा था यार, ये यही नहीं पता कि कल सुबह क्या होना. देखिए रियासत जो है ना एक्चुअली गिव्स, क्या कहना चाहिए, अ मोर विजन तो नहीं कहूँगा, विजन तो अभी मैं किसी से एक बहस कर रहा था, मैंने कहा जी लीडरशिप पे विजन होनी चाहिए. मैं कि यार क्या करूँ, मैं फजलदीन पे चला जाऊँ, जाके कहूँ 1000cc की विजन दे दो. You either have it or you don't. कि नहीं, they must have a spine to take difficult decisions. मैंने कहा यार मैं फजलदीन से कहता हूँ मुझे प्लेटिनम की स्पाइन दे दें. मतलब ये let us be practical. ठीक है. So policies, अगर मुझे यही नहीं पता है कि हुकूमत ने कल क्या करना है, तो मैं cannot take a long term. आप कह रहे हैं हुकूमत should be allowed to take a short term view. हुकूमत को यही नहीं पता कि कल सुबह क्या होना है, उसको अपनी liabilities नहीं पता, but they expect you to take a long term view. ये नहीं होता. An indicator of a direction really comes from the government कि जी आंदा क्या होगा, for me to take a long term decision. फिर आप हैरान होते हैं कि जी देखें लोग सिर्फ प्लॉट खरीद लेते हैं, लोग सिर्फ गोल्ड खरीद लेते हैं. यार मुझे पता है कि वो क्या करे. Can he take a risk over the long term view? उसको यही नहीं पता कि कल सुबह अगर पॉलिसी चेंज हो गई तो उसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी वायबिलिटी का किसको क्या पता है. So I think some very basic stuff which needs to be. फिर ये टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, पर हम तो कहते हैं हमने स्पेक्ट्रम से पैसे लेने हैं, स्पेक्ट्रम से पैसे बनाने हैं. We need to rethink our strategy, and I keep saying these are things which are doable, and I'm giving you examples.
पेन के बगैर पेन तो होगी, but we have to make sure, and I'll come to that in a second. Debt accumulation आप पढ़ते रहते हैं. Just to give you an idea, the debt, our debt is about close to 670% of revenues. I looked at a dozen comparator countries. उनका 215% है. Our external debt is about 338, 340% of exports. Similar countries, 12 of them, the debt to exports, the external debt to exports is 64%. So to me, the debt ceiling now should really be a percentage of revenues. वो हमने बनाया हुआ है, आपको भी पता है कि जी इससे इतनी ज़्यादा नहीं होगी. I think we need to move to a percentage of tax revenues, and then we can have a parliamentary time up. Okay. So external debt की restructuring करनी पड़ेगी. It's complex. और ये the important thing is ये नहीं आप किसी को जाके कह सकते कि जी मेरा तुसी डेट का कुछ कर दो बड़ी मेहरबानी होएगी. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ. ਅੱਲਾ ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा ਦਿੱता है. वो बात ये है कि they will turn around and say, okay, let's discuss debt, but on one condition. We have to make sure that there is no return of those conditions जिसकी वजह से आप मेरे पास आए थे. ऐसा नहीं ना कि जी खुली छुट्टी है बस ठीक है. Finally, I think I'm coming to the last slide. एक second, sorry, it's just sorry, ये जरा एक second last slide कर दें. Last slide कर दें. अच्छा, anyway, just to conclude very quickly, देखिए बात ये, it's very difficult to see what makes a country tick. It's not easy to copy. हम पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कि जी चीन ने ये किया फलां ये. It's not easy to copy another country. If it's that simple, तो आज एक चाइना ना होता 15 चाइना होते. So these are things which can. So now हमने देखें अब हमारे यहाँ यही होता रहा, IMF भी यही करता रहा, हम भी यही कर रहे हैं कि कह रहे हैं ब्लड प्रेशर की गोलियां ले लो ठीक हो जाओगे. यार इट नीड्स सर्जरी. और ये इस दफा ये जो है ना सर्जन ये वॉशिंगटन में नहीं होगा, लोकल होगा. और ये लोकल जो सर्जन है ना शुड नॉट हैव एनी एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरी करनी पड़ेगी. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट ये अनअवॉइडेबल हो चुका है. वी शुड बी क्लियर, दीज आर थिंग्स नाउ frankly unavoidable. Of course, it's a formidable agenda. I don't know whether we can do it in the medium term or not. But the reality is, your guess is probably going to be better than mine कि ये हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता. But to me, the only way is to look at the practical things that can be done. I've tried to put them on the table for a dialogue. मैं नहीं कह रहा कि मेरी basis पे कुछ होना है. We all understand there is a political economy to things. But to think that ये सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी and there will be no pain, it's not going to happen. How you distribute the pain equitably, I think is the real challenge politically. Thank you.